we have seen that if we have a surface S and we have to find the integral of this vector field across this surface S, then we know that double integral of f dot ds is same as double integral f dot n cap ds, where n is a unit normal vector to the surface. Now, to find the unit normal vector, you can take two things. One, we know that the gradient of any surface is perpendicular to the surface. So gradient of S is perpendicular to S. So you see, हम gradient निकाल लेंगे surface का. If you divide this with its magnitude, you will get the unit normal vector. और दूसरा, कई बार क्या होता है, हम अंदाजे से करते हैं. कई बार क्या होता है, आपको surface दी होती है a I cap, say the surface is a I cap, or say let me just say I'm giving you this surface x square plus y square is equal to 4. So if you see, this is what? This is a circle in 2D in xy plane. और हमें पता है xy plane के perpendicular क्या होता है? Z vector. So by here we can see that n cap can be k cap, because normal vector means क्या हो गया? K cap, right? So at times with intuitions we can also see this, right? And this we have further seen is can be written as what? Double integral over a region R f dot n. अब आपने प्रोजेक्शन किस साइड पे लेनी है, ये आपने खुद देखना है. सो अगर आप एक्स वाई प्लेन में ले रहे हो प्रोजेक्शन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? dx dy, और नीचे क्या आ जाएगा? n cap dot dx dy की परपेंडिकुलर क्या है? k वेक्टर. सो यू सी दिस इज k वेक्टर. अगर आप yz प्लेन में ले रहे हो तो dy dz, और yz प्लेन की परपेंडिकुलर क्या है? I cap. तो नीचे क्या आ जाएगा? n cap dot I cap. अब यहाँ पे भी कई बार आपको पता लग जाता है कि आपको प्रोजेक्शन कहाँ लेनी है. से सपोज आपकी क्वेश्चन में आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया 3 I cap प्लस 2 j cap. तो बेटा अगर आप प्रोजेक्शन ले लोगे xy प्लेन में, अगर आप प्रोजेक्शन ले लोगे xy प्लेन में, तो बेटा आप n cap को किससे मल्टीप्लाई करोगे? n cap को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आई एम सेइंग, अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो xy प्लेन में, तो आपको पता है xy प्लेन के परपेंडिकुलर होता है z एक्सिस, तो k cap. तो मींस आपको n का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा k के साथ. अब अगर आप n का डॉट प्रोडक्ट करोगे k के साथ, तो देखो i डॉट k कितना होता है? व्हाट इज i डॉट k? बेटा व्हाट इज i डॉट k? 0. j dot k is also 0. So you see this is becoming 0. So if you see, your denominator here is becoming 0. So this is wrong. So means you cannot take projection in xy plane. Either you have to take projection in yz plane, or you have to take projection in zx plane. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So ये questions में हमने खुद देखना है, हमें questions में कुछ नहीं बताया होगा. So let us start with the questions. So very first example says आपको f is given 4xz. क्वेश्चन लेंथी होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे सीधा 10 मार्क्स का बनता है. yz k cap. So you have to evaluate this double integral s f dot n ds, where s is what? S is a cube which is bounded by x is equal to 0, x is equal to 1. So it means 0 is origin is here. So x is equal to 0, x is equal to 1. So if you see, this is 0, this is x is equal to 1, this is my x-axis, right? Say this is my y-axis, this is a z-axis, this is my y-axis. So if you see, this is z is equal to 1, this is y is equal to 1. Let us name the coordinates. So this is O, this is A, this is B, this is C, right? This is D, E, F, G. अब देखो, आपको टोटल इंटीग्रल निकालना है इस सरफेस का. जब हम गॉस डाइवर्जेंस, देखो अभी यही क्वेश्चन हम आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से करेंगे, इजी हो जाएंगे. अभी हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं पता है. तो अगर आप देखो, अगर आपको इस सरफेस का इंटीग्रल निकालना है, तो बेसिकली सरफेस मींस व्हाट? सरफेस मींस द आउटर पोर्शन. तो
थिंक इमेजिन दिस एज अ डाइस, तो डाइस का वो पोर्शन जहां पे नंबर्स लिखे होते हैं. सो यू सी दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस, दिस इज अनदर फेस. एक उधर 4 हो गया. सो एक तरह से फेसेस कौन से बन रहे हैं? O A B C, then O G F A, then A B okay, A B E F, then C O D G, and so on. You will have 8 faces. So we'll have how many faces? 6 faces. So we will be finding the integral, surface integral of this curve, this given vector, along all these 6 phases one by one. बेटा यहाँ तक clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. Let us take the first phase. Let us take the first phase, D, G, F, E. D, G, F, E. देखो हमें क्या निकालना है? We have to find integral F dot N ds. तो अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखो यहाँ पे F is given to you. आपका फेस कौन सा है? आपका फेस, लेट मी जस्ट कलर दिस फेस नाउ. दिस इज दिस फेस. N इज द नॉर्मल वेक्टर. अब देखो ये जो फेस है ये कौन सी प्लेन में है? ये कौन सी प्लेन में है? ये कौन सी प्लेन में है फेस? इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी? इस फेस के जो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, इस फेस के परपेंडिकुलर लाइन बेटा ऐसे नहीं आएगी बाहर को. Yes, ma'am. This is the face, this is the face. You see, this is the perpendicular line. Perpendicular line हमेशा फेस के परपेंडिकुलर बाहर को आ रही है. So if you see for this face, right? Let me just write it. So for this face, n cap is equal to, क्या हो जाएगा बेटा? लाइन बाहर को आ रही है, किसके पैरेलल हो जाएगी? परपेंडिकुलर y एक्सिस के. सो n cap is j cap. बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें नॉर्मल चाहिए. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. मैम प्लेन कौन सा होगा? बेटा कैसे, क्या बोल रहे हो? प्लेन मैम, प्लेन YZ. प्लेन बेटा देखो YZ प्लेन नहीं बनेगा. ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो, आप एक चीज यहाँ पे फिक्स है, इस प्लेन में आपका प्लेन ये वाला है, इस प्लेन में x हमेशा 1 रहेगा. सो दिस विल बी YZ प्लेन. एक्चुअली ये रहेगी ऑब्जेक्ट 3D में, एग्जैक्टली ये 2D में नहीं आएगी, ये ऑब्जेक्ट 3D में ही रहेगी. इसमें अगर आप देखो आपका नॉट x इज इक्वल टू 1, आई एम सॉरी, इफ यू सी इस प्लेन में y इज इक्वल टू 1 रहेगा आपका. ये आपका YZ प्लेन नहीं रहेगा, ये आपका ZX प्लेन बन जाएगा. अगर आपको समझने में डाउट आ रहा है, जस्ट आई डू वन थिंग. ये जो आपका फेज है ये बाहर वाला, इसको एक तरह से सोचो कि आप क्यूब को प्रेस कर दो. अगर आपको प्लेन आइडेंटिफाई करनी है, क्यूब को प्रेस कर दो. बेटा जैसे ही आप क्यूब को प्रेस करोगे ये वाला फेस पीछे चला जाएगा, ये ओरिजिन पे ओवरलैप कर जाएगा, तो एक तरह से XZ प्लेन आ जाएगी. बेटा इज इट फाइन? राधिका क्लियर है? यस मैम. आपकी प्लेन हो जाएगी XZ प्लेन. और अगर आप नॉर्मल की देखो, दो चीजों से आप प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो ज्योमेट्री से, या फिर आप देखो नॉर्मल क्या है. नॉर्मल इज J कैप. J कैप मींस परपेंडिकुलर. तो J कैप के परपेंडिकुलर कौन सी प्लेन होती है? J कैप के परपेंडिकुलर ZX प्लेन होती है. J कैप मींस Y एक्सिस. तो Y एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है ZX प्लेन. तो यहाँ से भी हमें हिंट मिलता है कि प्लेन इज ZX प्लेन. दूसरा, अगर आप इस ब्लू वाले फेस को जो मैंने सारा कलर किया है, इसको एक बार पीछे प्रेस कर दो, इमेजिन कर दो कि आप इसको स्क्वीज कर रहे हो, तो अगर आप देखो ये ZX प्लेन में चला जाएगा. बेटा क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम. और दूसरा अगर आप देखो, अब एक और चीज हमें यहाँ से मिल रही है, y is 1. सो यू सी इस प्लेन पे अगर आप y की कोई भी वैल्यू लोगे, y is always 1. y is always 1. y is fixed. ये y is 1 है. आपने जस्ट ये प्लेन XZ प्लेन से उठा के y is equal to 1 पे रख दी है. सो एट दिस प्लेन y की वैल्यू विल बी फिक्स. सो फॉर दिस प्लेन y विल बी 1. बेटा किसी को डाउट यहाँ तक? गर्ल्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. So that's it. So let us do this now. So
therefore let me name this as integral, this integral as I1. So I1 will be what? Double integral f, what was the function f given to me? F is 4xz. Let me write it here. 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap. So you see what this will become. So you see f dot n. So this is my n j cap. This is my f. So f dot n. So f dot n कितना हो जाएगा? जब आप I dot j करोगे 0 हो जाएगा. J dot k करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा. बेटा क्लियर है? तो f dot n में सिर्फ क्या आ जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर. और अगर आप देखो आपका y भी 1 है. So y is also 1. बेटा क्लियर है? मैं y is equal to 1 नेक्स्ट स्टेप में डाल दूंगी. अदरवाइज वंस यू आर डन आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो. तो f डॉट n ds. अब बेटा अगर आप देखो आपका n क्या है? n is j. यहाँ पे n is j. तो मुझे यहाँ से एक हिंट मिलता है. अगर मैं प्रोजेक्शन i या k के साथ ले लूंगी तो j डॉट i और k डॉट j will be 0. So this is one thing is clear that I will take projection along which axis? I will take projection along yz xz plane. I will take projection along xz plane because जैसे मैं xz plane के साथ projection लूंगी नीचे मेरा क्या आ जाएगा? n dot j. And n is already j, so j dot j will be 1. So you see this will be what? ds को हमने क्या लिख दिया? dx dz over n dot j. So j dot j. So finally what this integral? So अब जैसे ही आपने x और z में इंटीग्रल को चेंज कर दिया, x की लिमिट भी कहाँ से कहाँ है? x की लिमिट भी 0 to 1 है, y की लिमिट भी 0 to 1. So this will finally become what? 0 to 1, 0 to 1, y की वैल्यू is 1, j dot j is 1, dx dz. So जब हम पहले dx के साथ इंटीग्रल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? x. और x के लिमिट्स डालेंगे, अपर लिमिट तो 1, लोअर लिमिट 0. So 1 minus 0 will be 1. Again 0 to 1, so you will get dz. So again you will integrate, you will get 1. Beta, is it fine? मैम dx dz over n cap dot j cap. मैम ये स्टेप समझ नहीं आया. बेटा देखो आपको जब भी सरफेस इंटीग्रल निकालना है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. प्लीज किसी को नहीं समझ में आया मेरे से पूछोगे, फिर आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह नहीं होगी. एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो यू सी डबल इंटीग्रल अगर आपने निकालना है f डॉट n ds. मैं बार बार इसको ऐसे इसलिए लिख रही हूँ, दिस इज सेम एज f डॉट s ds. ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम यूज करेंगे. इसका हमने फॉर्मूला क्या किया था? डबल इंटीग्रल f डॉट n. अंजलि यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपको f गिवन होगा, n आपने खुद निकालना है देख के कि सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है. अब ds को हमने कैसे चेंज करना है? dx को मैंने आपको बताया था कि ds को हम या तो चेंज कर सकते हैं dx dy. सो दिस विल बी व्हाट? अगर आप dx dy कर रहे हो, ये dx को चेंज कर रहे हो तो नीचे क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ n विद dx और y. x और y के परपेंडिकुलर क्या होता है? z. और z के साथ क्या होता है? k क्या. तो या तो ये आ जाएगा. अगर आपने चेंज करना है इसको yz प्लेन में तो आ जाएगा डबल इंटीग्रल f डॉट n dy dz. अगर आपने yz प्लेन में चेंज किया है तो नीचे आएगा yz के परपेंडिकुलर होता है i. और सिमिलरली अगर आपने zx प्लेन में चेंज किया है तो नीचे आ जाएगा डबल इंटीग्रल f डॉट n dz dx. नीचे आ जाएगा n डॉट j. ये आपने खुद से देखना है कि हमने कैसे चेंज करना है. एक्चुअली हमें रीजन नहीं पता. रीजन कैन बी एनी कर्व. पहले तो आपका क्या होता था? रीजन इज सर्कल. आपको पता है सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे तो इट कैन बी एनी कर्व.
सो हम ds को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सो ये दिस हेल्प्स यू टू चेंज. तो अगर आप यहाँ पे देखो आपका n कितना आया था, j कैप आया था. अब अगर मैं सपोज इस फॉर्मूले को लगाती हूँ सेकंड वाले को, तो j डॉट i 0 हो जाएगा, j डॉट i 0 हो जाएगा. नॉट पॉसिबल, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगाती हूँ तो j डॉट k 0 हो जाएगा. नॉट पॉसिबल. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज आई शुड यूज j डॉट j. तो इसीलिए मैंने इसकी प्रोजेक्शन तो ds को क्या चेंज किया, ds को चेंज कर दिया dx dz ओवर n डॉट j. सो n आपका j ही था, सो j डॉट j बिकम्स 1. बेटा क्लियर है? मैम n कैसे चूज करना है? बेटा n आप देखो कौन से फेस पे हो. ये देखो, अगर मैं इस फिगर में देखूं, ये वाला फेस देखो बेटा, n क्या होता है, परपेंडिकुलर. आपने इंट्यूशन, ये देखो इस फेस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगी, वो बाहर को जाएगी, ऐसे बाहर को जाएगी. सो इफ यू सी, ये जो बाहर को लाइन आ रही है ये किसके पैरेलल है? इस फिगर में अगर आप देखो, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहा है. ही इज टेकिंग दिस एज एक्स एक्सिस. ही इज टेकिंग दिस एज एक्स एक्सिस. सो हमें पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई वेक्टर होता है तो वो क्या होता है, आई कैप. क्या हुआ? इसका सेकंड पार्ट देखो. लेट अस टेक दिस. मैं आई एम डूइंग एज पर द बुक. डोंट बी कंफ्यूज्ड. उसने एक्सिस दूसरी तरह ली है इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्यों. लेट अस टेक वन पार्ट विद हिम. सो ऐसे ही हमें सारे फेजेस पे निकालने हैं. लेट अस टेक फेस ABCO. सो यू सी ABCO. तो ये देखो, ये पीछे वाला फेस है. तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि दिस फेस, फॉर दिस फेस नॉर्मल विल बी अगेन दिस वन. सो यहाँ पे अगर आप देखो, उसकी एक्स एक्सिस है नीचे, उसकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो गया, तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो गया फेस ABCO, तो नॉर्मल कितनी हो जाएगी, आई कैप. किरण क्लियर है? यस मैम. अब राधिका आप देखो, अगर आप देखो अब इस फेस के लिए, यू सी दिस फेस इज ऑन द YZ प्लेन. दिस फेस इज ऑन द YZ प्लेन. सो हमें पता है ऑन YZ प्लेन x इज 0. इस केस में हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? सो I2 विल बी डबल इंटीग्रल f डॉट n. तो मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ f डॉट n. सो n इज ओनली i कैप. सो जब आप f का डॉट प्रोडक्ट लोगे i के साथ तो क्या बन जाएगा, 4xz. i डॉट i इज 1, i डॉट j 0 है, i डॉट k 0 है, तो बाकी टर्म्स नहीं आएंगी. ds. और अगर आप देखो इसमें x इज 0, मैंने z को नहीं 0 पुट किया, x 0 है. मोमेंट x इज 0, everything will become 0. This integral will become 0. अगर यहाँ पे x 0 नहीं होता तो आपका इंटीग्रल आता z के साथ. बेटा क्लियर है? मैम फिर नीचे जो हम n डॉट लेते हैं मैम, वो फिर कैसे लेते हैं इस पार्ट में हम? बेटा इस पार्ट में तो 0 ही हो गया. मैं दूसरा पार्ट कराती हूँ. इस पार्ट में तो 0 जरूरत ही नहीं है. ऐसे ही जब आप इस फेज में लोगे, अब आप जैसे सपोज मैं ये वाला फेज लेती हूँ. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, नॉर्मल वेक्टर शुड बी ऑलवेज आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड. नॉर्मल वेक्टर शुड ऑलवेज बी आउटवर्ड. तो अब अगर आप देखो, यू सी दिस इज द नॉर्मल वेक्टर. अब मैं फेस ले रही हूँ OGDC. आई एम टेकिंग द फेस OGDC, राइट. आई एम टेकिंग द फेस OGDC. तो अगर आप देखो इसके नॉर्मल कौन सा वेक्टर होगा, तो इफ यू सी, ये वेक्टर जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है. इसने यहाँ नीचे y एक्सिस ली है, सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. बट अगर देखो डायरेक्शन उल्टी है, वैसे हमारा इंक्रीजिंग y एक्सिस होती है, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, तो y एक्सिस के पैरेलल क्या हो गया, -j. बेटा क्लियर है? यस मैम. राइट. अब इस फेस के लिए अगर आप देखो, ये फेस कौन सी प्लेन में आ गया, दिस इज एन XZ प्लेन. सो XZ प्लेन का मतलब क्या हो गया, योर y इज 0. सो अब अगर मैं लूंगी डबल इंटीग्रल f डॉट n ds, झाड़ लो. सो f डॉट n ds कितना हो जाएगा हमारा, f डॉट n ds विल बी हाउ मच. सो इफ यू सी योर n इज व्हाट, n इज j कैप. तो जब आप f डॉट n करोगे तो इफ यू सी माइनस सिर्फ कितना आएगा, माइनस y स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस j. सो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ds हो जाएगा.
बिकॉज जे कैप लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा क्लियर है? तो अगेन इफ यू सी फॉर दिस प्लेन y is 0, so y is 0 का मतलब क्या हो गया? होल ऑफ द इंटीग्रल बिकम 0। बेटा क्लियर है? यस मैम। राइट अब अगर आप ये वाला फेज लेते हो, से इफ यू टेक द फेज AFBE, let us take the phase AFBE. Let us take the phase AFBE. So you see what is happening. अब इस फेज के लिए नॉर्मल वेक्टर विल बी हेयर. So now the normal vector will be what? Normal vector will be for this phase will be j cap because direction outward यही है. So normal vector मिल गया. अब आप जब j dot j करोगे तो जब यहाँ पे f dot n करोगे तो क्या आ जाएगा? What will be f dot n? Quickly, what will be f dot n? I'm talking about the phase AFBE. So you see, I'm talking about the phase AFBE. So अब हमें n वेक्टर मिल गया, n is j cap. तो अगर आप इसको दोबारा प्रेस करोगे, इसको स्क्वीज करोगे, तो ये दोबारा हमारा कहाँ चला जाएगा? ये xz प्लेन में चला जाएगा. So plane is xz plane. So plane xz plane है, तो यहाँ पे y की वैल्यू is 1, y is fixed, y is 1. So let us calculate f dot n ds. So you see, this will be what? f dot n. तो जब आप f का n के साथ, n is j cap, तो जब आप लोगे, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, तो y square ds. So you see, y is what? y is 1. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? ds. माइनस साइन बाहर आ जाएगा. So minus ds. अब बेटा आपने यहाँ पे अब ds को हमने चेंज करना है. So minus ds. अब अगर आप देखो, your n vector is j cap. तो j का डॉट प्रोडक्ट हम j के साथ ही ले सकते हैं. सो n यहां से मुझे पता लग गया कि नीचे तो n डॉट j ही आएगा, बिकॉज अगर j डॉट i आ गया या j डॉट k आ गया तो 0 हो जाएगा. तो j का मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दिस इज व्हाट? dx dz. बेटा इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? यस मैम। प्लेन कंसीडर करके नहीं ले सकते क्या? जैसे हमें प्लेन पता लग गया कौन सा है, फिर हमें नीचे लिखने की जरूरत कम पड़ेगी ना. कैसे कैसे? जैसे हमें एक्स जेड प्लेन पता लग गया तो फिर डीएस की जगह हम डीएक्स और डीजेड लिख देंगे. बेटा तो नीचे लिखना पड़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो बाई चांस ये है कि आपका n वेक्टर j ही बन रहा है, तो j डॉट j आपका 1 हो गया. बट अभी जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें जरूरी नहीं है कि n डॉट j 1 ही आएगा. तो अगर शुरू से ही आदत डाल लोगे तो आपको क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी. ये तो इस क्वेश्चन में हो रहा है कि j डॉट j हो रहा है, i डॉट i हो रहा है, तो सब कुछ 1 बन रहा है. इज इट फाइन? यस मैम. अभी देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सो सारे इंटीग्रल्स को फाइनली हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया. बेटा क्लियर है सबको? यस मैम। Okay, how much time we have? It's almost 11, right? Okay, so I'll stop here. Just do this question again. We'll start with the next questions tomorrow. Okay बच्चे, और ट्राई करना